The topic of this video is shift register in digital electronics. बेसिकली हम देखते हैं कि रजिस्टर क्या होते हैं, इंडीड शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं. So first of all, register is an entity that is used to store some data. So ये एक basically memory है that will store data in the form of flip flops. So obviously it's a collection of flip flop that will hold the data. Every flip flop hold one bit of data. To hold n bit of data, obviously you need n flip flops, and the collection of those n flip flops will give a n bit register to you. तो n bit register के लिए n flip flop चाहिए और वो n bit डाटा स्टोर कर सकते हैं. फॉर एन इंस्टेंस आप 4 bit register की एग्जांपल लो. In this you will need 4 flip flops that will store 4 bit of data, single bit in each flip flop. So this binary data stored in the register or in the flip flops can be moved from one flip flop to another flip flop. That is why that is the concept of shift register, in which we can shift the data from one flip flop to another flip flop within the register, or from one register to another register or another device. So secondly, the register that allow such transfer are called shift register, that allow the shifting of data from one flip flop to another. So now, as the name suggests, shift means obviously shifting of data, a movement of data from one flip flop within the register to another flip flop, and obviously from one register to another. So now there are basically 4 types of shift register: serial in, serial out shift register, serial in, parallel out shift register, parallel in, serial out shift register, and parallel in, parallel out shift register. So basically what we want to say here, we will discuss the meaning of serial and parallel first. So in the serial data, it's about, let's suppose you have data 100, 3-bit data. So if you want to shift this data to some device, let's say this device, this X device, so you will firstly shift 0 in here, 1 bit at a time. Then second, you will shift this 0, okay, and then you will shift this 1. So that's called serial, means 1 bit at a time. And in case of parallel data transmission, you will transmit all these 3 bits in parallel at the same time. That is called parallel data transfer. So in serial you will transfer bit by bit, in parallel you will transfer n number of bits in one go. So now before moving any further, we will discuss the application of these shift register or registers. So these registers can be used for conversion of serial data into parallel data, parallel data into serial data. These two can be the application for these 2 shift registers. It can also be used for storing memory. That's the 3rd application of it. 4th application, it can be also used for data manipulation, the changing of data. Obviously, if you can shift the data from one flip flop to another, you can modify the data within the register. The 5th application will be the transmission of data from one register to another. So these registers can administer those transmission policies. तो basically ट्रांसमिशन के लिए यूज़ हो सकता है, स्टोरेज के लिए यूज़ हो सकता है, मैनिपुलेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है, और पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है. So now we are beginning with the serial in, the illustration of different shift registers, starting with the serial in, serial out. SISO means serial in, serial out shift register. So let's say we have 4 bits
4-bit register, and obviously these block represents one flip flop. तो इसमें हम एक साइड पर डाटा डालते हैं, राइट। तो पहली क्लॉक साइकिल में हमने पहला बिट इस डाटा को दिया, लेट अस सपोज हमने 100 ट्रांसमिट करना है, तो पहली साइकिल में यहाँ 0 इनपुट दिया, स्टार्टिंग ऑब्वियसली फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो 0 इनपुट किया। अगली क्लॉक साइकिल आएगी, आपका 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो नेक्स्ट 0 है वो यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में आपका 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 0, और ये वाला 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये 1 हम इनपुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे 1 इनपुट आ जाएगी। ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल वो 0 यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये वाला 1 यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ऑब्वियसली 1 के बाद अगर कोई डाटा है तो वो यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल ये 0 सबसे पहले निकल के आएगा एज एन आउटपुट, उससे अगली क्लॉक साइकिल के बाद ये वाला 0 निकल के आएगा जो कि यहाँ पहुँच गया होगा, और 1 जो है यहाँ पहुँच गया होगा, राइट। उसके बाद ये वाला 1 निकल के आएगा। सो जो भी आपने इनपुट किया है वही आप यू विल गेट एज एन आउटपुट इन द सेम ऑर्डर, बट इन द सीरियल ऑर्डर। तो हम बिट बाय बिट ही फीड कर रहे हैं और बिट बाय बिट ही हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आउटपुट। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट स्टेप इज द सीरियल इन एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो इसमें भी लेट अस सपोज हमें हमारा डाटा हम 4 बिट का लेते हैं इसमें, लेट्स से दिस इज आवर डाटा 1001। तो ऑब्वियसली सीरियल इन कर रहे हैं, तो सीरियल इन में क्या होगा, पहले 1 आपका यहाँ पे आएगा, फिर 1 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि बिट बाय बिट हम ट्रांसमिट कर रहे थे। तो फाइनली आफ्टर द 4 क्लॉक साइकिल्स आपका डाटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इन केस यू फील एनी डिफ़िकल्टी, तो इसी वे से ही होगा, जैसे हमने 100 यहाँ पे ट्रांसमिट किया ना, वैसे ही 1001 1001 यहाँ पर हम सीरियल ऑर्डर में शिफ्ट करवाएंगे। एंड आफ्टर द 4 क्लॉक साइकिल्स, क्योंकि ऑब्वियसली 3 क्लॉक साइकिल लग 4 क्लॉक साइकिल लग जाएंगी, एक यहाँ पे फीड होने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, दूसरी यहाँ पे जाने के लिए, और तीसरी यहाँ पे जाने के लिए। तो उतनी क्लॉक साइकिल्स के बाद हम एक साथ अपना डाटा आउटपुट करवाएंगे। तो मतलब चारों की चारों बिट या जितनी भी आपकी n बिट्स होंगी, इन केस ऑफ n बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, तो आपकी n की n बिट्स साथ में ही आउटपुट होंगी यहाँ पे। तो मतलब 1001 एक साथ आउटपुट आएगी इनकी। सीरियल इन सीरियल आउटपुट में क्या था, 1 बाय 1 बिट बाय बिट आ रही थी, इसमें चारों पैरेलली एक साथ आएंगी। ना मूविंग अप नेक्स्ट विद द पैरेलल इन एंड सीरियल आउट। पैरेलल इन में अब क्या होगा, बेसिकली लेट्स से अगेन हम एग्जांपल लेते हैं कि 1001 को हमने इनपुट किया है, तो डाटा इनपुट जो होगा वो पैरेलल ही होगा। मतलब इस में भी 1 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 1 इनपुट होगा, तो एक एक बिट एक एक फ्लिप फ्लॉप को जाएगी। तो अब ये जो आउटपुट यहाँ से एक ही यही फ्लिप फ्लॉप होगा, ये आउटपुट देगा हमें। जैसे पिछले केस में ये चारों फ्लिप फ्लॉप आउटपुट दे रहे थे, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट के केस में यही फ्लिप फ्लॉप दे रहा था, वैसे ही इसमें भी एक ही फ्लिप फ्लॉप आउटपुट देगा। तो जब पहली साइकिल आएगी, फर्स्ट साइकिल आएगी, तो ये 1 आउटपुट आएगी, ये 0 यहाँ पर फीड किया जाएगा ताकि ये 0 यहाँ पे आ सके। इन द सेम टाइम ये 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा, मतलब शिफ्ट होना शुरू होगा इन द राइट डायरेक्शन, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा इनपुट। ऑब्वियसली यहाँ पे अंदर आउटपुट 1 आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगली साइकिल में ये जहाँ पे 0 इनपुट हो रहा था, ये अब आउटपुट आएगी, ये वाला 0 इस फ्लिप फ्लॉप को इनपुट किया जाएगा, और यहाँ से इस फ्लिप फ्लॉप की 0 इनपुट आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी। ये 1 इस फ्लिप फ्लॉप को इनपुट होगा, और यहाँ पे 1 आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी, राइट। अगली क्लॉक साइकिल में ये 0 इनपुट इस फ्लिप फ्लॉप को दिया है, तो यही आउटपुट आ जाएगी।
ये 1 फ्लिप फ्लॉप है, इसको इनपुट दिया तो यहाँ से आउटपुट 1 आनी शुरू हो जाएगी। अगली साइकिल में यहाँ पे 1 इनपुट दिया है इसको, तो इसकी आउटपुट 1 आ जाएगी। ऑब्वियसली जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रही है, तो द मोस्ट यू कैन से नेचुरल फ्लिप फ्लॉप दैट कैन वर्क हेयर इज़ डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में हम जो इनपुट देते हैं वही हमारी ट्रिगर करने के बाद आउटपुट आ जाती है। 0 देते हैं तो 0 आ जाती है, 1 देते हैं तो 1 आ जाती है। सो दैट्स अ मोस्ट नेचुरल और यू कैन से ईजी फ्लिप फ्लॉप जिसमें इंटरकनेक्शंस कम होंगे। तो अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें तो हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर होगा वो ज़्यादा बेटर तरीके से हम बना सकते हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं नज़र आएगा। सिमिलरली पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ये बहुत ही सिंपल है। डाटा आपका पैरेलल ही इनपुट होगा और डाटा आपका पैरेलल ही आउटपुट होगा। लेट अस सपोज 1001 द सेम एग्जांपल वी आर टेकिंग। ये इनपुट कर रहे हैं हम 1 फ्लिप फ्लिप एट द टाइम। पहली क्लॉक साइकिल में हम इनपुट करेंगे और अगली क्लॉक साइकिल में सेम ही ये आउटपुट पैरेलली ही हमें मिल जाएगी 1001। सो नेक्स्ट अप हम देखते हैं कि सीरियल इन सीरियल आउट फ्लिप फ्लॉप, एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप से देखते हैं कि कैसे बनेगा। सो हेयर वी गो, यहाँ पे हम क्लॉक सबको सेम दी हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप देखें सीरियल इन सीरियल आउट जो आपने उसका ब्लॉक डायग्राम देखा था उसी को अगर कंसीडर करें तो हम जहाँ पर लेफ्ट से 1001 भेज रहे हैं तो डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया हमने। तो पहले ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट होके यहाँ पे 1 फीड किया जाएगा, अगली क्लॉक साइकिल में 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 फिर फीड किया जाएगा, फिर ये आगे शिफ्ट होते जाएंगे और अगली बिट फीड की जाएगी एंड यू विल गेट ऑब्वियसली आफ्टर n क्लॉक साइकिल्स आपको पहली बिट आउटपुट मिल जाएगी और उससे अगली साइकिल्स में बाकी आने वाली बिट्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीरियल इन सीरियल आउट। और यू कैन सी वी हैव यूज्ड D flip flop so that we can have less number of interconnections। अब और फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं बट इट विल जनरेट सम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उसको डी फ्लिप फ्लॉप में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नाउ मूविंग अप नेक्स्ट, सीरियल इन एंड पैरेलल आउट। आप एग्जांपल अगेन लीजिए 1001 की। जैसे सीरियल इन सीरियल आउट में था कि 1 बिट एट अ टाइम फीड होगा, 1 पहले यहाँ पे आएगा, फिर 1 अगले साइकिल में यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर अगले साइकिल में यहाँ पे पहुँच जाएगा, फाइनली वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, राइट। सिमिलरली 0 जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये 0 यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये 1 यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसके बाद जो अगली साइकिल होगी यहाँ पे 1 इनपुट हो रहा है और ये चारों की चारों बिट एक साथ ही आउटपुट हो जाएंगी। ये 1 यहाँ पे इनपुट है, यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वो पैरेलली हमें मिल जाएगा। तो यहाँ 1 इनपुट है, जहाँ से 1 आउटपुट आएगी, यहाँ 0 इनपुट है, यहाँ पे 0 आउटपुट आ जाएगी, यहाँ 0 इनपुट है, यहाँ पे 0 आउटपुट आ जाएगी, यहाँ 1 इनपुट है और यहाँ पे 1 आउटपुट आ जाएगी। सो आफ्टर एवरी n क्लॉक साइकिल्स आपको n बिट डाटा मिल जाएगा। So that is all about serial in and parallel out shift register. We will further continue with the other types in our next video. Thank you.